سورہ توبہ، جہاں اللہ ایک اعلان کرتا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیسی جنت؟ وہ جنت جس کے لیے ہر مسلمان اس دنیا کے ہر لمحے میں آزمائش سے گزر رہا ہے۔ حلال اور حرام کی جنگ، گناہ اور ثواب کا فیصلہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، اور وہ سب کچھ جس سے رب کی رضامندی حاصل ہو۔ صحیح مسلم 7008۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی پیدا ہوا۔ سوچو، وہ زندگی جہاں نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ بیماری، نہ فکر، نہ خوف، اور سب سے بڑھ کر یہ ڈر بھی ہمیشہ کے لیے ختم کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اب آئیے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کریں اور اس جنت کو دل میں محسوس کریں۔ وہ جنت جس کے بارے میں ہمیں اللہ نے قرآن میں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی جھلک دکھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی قرآن اسپیکس۔ روح کو ہدایت دینے والی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ تمہارے سامنے تمہارا گھر کھڑا ہے، ایسا گھر جس کا تصور دنیا کے کسی ذہن میں کبھی پیدا نہیں ہوا، خالص نور سے بنکا ہوا، جس کی دیواریں سونا، چاندی اور یاقوت کی روشنی سے یوں دمک رہی ہیں جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دروازے آہستگی سے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، جیسے وہ صدیوں سے صرف تمہارا انتظار کر رہے ہوں۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ایسا سکون تمہیں گھیر لیتا ہے جو تم نے دنیا کی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے اور روح جیسے پر لگا کر اڑنے لگتی ہے۔ پھر فرشتے تمہاری طرف بڑھتے ہیں، نور سے روشن چہرے، نرمی سے مسکراتی ہوئی آنکھیں، اور وہ کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم وہ تھے جو نیکی کے کام کرتے رہے، آؤ اور ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، مگر یہ وہ آنسو نہیں جو دنیا کے غموں میں بہے تھے، یہ خالص خوشی کے آنسو ہیں۔ پیچھے سے فرشتوں کی میٹھی آواز گونجتی ہے، یہاں غم کا کوئی نام نہیں، یہاں صرف خوشی ہے، ہمیشہ کی خوشی۔ تم پہلا قدم زعفران اور مشک کی خوشبو سے مہکی ہوئی زمین پر رکھتے ہو، اور ہر قدم کے ساتھ نور بلند ہوتا ہے، یوں جیسے خود زمین تمہارا استقبال کر رہی ہو۔ اب تمہاری عمر 33 برس ہے، کامل جوانی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تمہارا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، آنکھوں کے گرد قدرتی سرما کی سی چمک ہے، اور دل بالکل پاک، بالکل روشن۔ دنیا کی ہر کمی، ہر کمزوری، ہر ٹوٹ پھوٹ سب کہیں پیچھے رہ گئی۔ پھر تم جنت کے ایک خاص چشمے سے پہلا گھونٹ پیتے ہو، ایسا پانی جو صرف جسم نہیں بلکہ روح کو بھی توڑ ڈالتا ہے۔ ایک ہی گھونٹ اور ساری تھکن، ساری یادیں، سارا درد مٹ جاتا ہے۔ اب تم مکمل طور پر پاک ہو چکے ہو، بالکل نئے، بالکل روشن۔ فرشتہ رضوان جو جنت کے دروازوں کا نگہبان ہے، مسکراتے ہوئے تمہاری طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اہلاً و سہلاً، تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو۔ پھر جنت کے دروازے پوری شان کے ساتھ کھلتے ہیں۔ ایک نرم گرم لہر تمہارے چہرے کو چھوتی ہے، ایسی لہر جو دنیا میں کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہر طرف خوشبوئیں، ہر طرف نور، ہر طرف رحمت، یوں بہہ رہی ہیں جیسے بہار اتر آئی ہو، اور تم اپنے رب کی رحمت سے بھرے نئے جہان میں پہلا قدم رکھتے ہو، جہاں نہ درد ہے، نہ موت، نہ اداسی، صرف سکون، صرف محبت، اور صرف اللہ کی بے پایہ رحمت۔ اب جب تم جنت کے عظیم دروازے کے سامنے کھڑے ہو، فرشتہ رضوان جو جنت کا محافظ ہے، نرمی سے مسکراتا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس ہے جیسے خود اللہ کی رحمت بول رہی ہو۔ وہ کہتا ہے، ان دروازوں کے پیچھے وہ جنت ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ ایک الگ راستے سے جنت کے مختلف درجات کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر دروازہ اتنا وسیع کہ اس کے دونوں کناروں کا فاصلہ 100 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر بھی جب وہ کھلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صدیوں سے تمہارا منتظر تھا۔ ہر دروازے کے اوپر سنہری نور میں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا دروازہ، باب الصلاۃ، وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی نماز کو مضبوطی سے تھاما،
इनके चेहरों से नूर बरस रहा होगा। दूसरा दरवाज़ा, बाबुर रयान, वो रोज़ादार दाखिल होंगे जिन्होंने प्यास को इबादत बना दिया था। इनके लिए प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तीसरा दरवाज़ा, बाबुस सदका, वो जिन्होंने दुनिया में देते ही देते गुजारा, चाहे एक दाना हो या एक मुस्कुराहट। चौथा दरवाज़ा, बाबुल जिहाद, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स से लड़ाई लड़ी, बुराई के खिलाफ डटे रहे और हक के रास्ते पर साबित कदम रहे। पांचवां दरवाज़ा, बाबुल हज, वो खुशनसीब जो अल्लाह के घर तक पहुंचे और हर कदम पर कहा लब्बीक अल्लाहुम्मा लब्बीक। छठा दरवाज़ा, बाबुल काज़िमीन अल गैज़, वो लोग जो गुस्सा दबा लेते थे और माफ़ कर देते थे जबकि उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई हो। सातवां दरवाज़ा, बाबुल अमान, वो जिन्हें बग़ैर हिसाब जन्नत अता की जाएगी, अल्लाह की ऐसी रहमत कि हिसाब की ज़रूरत न रहे। आठवां दरवाज़ा, बाबुल ज़िक्र, वो लोग जिनके दिल हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा रहे और जिनकी ज़बान पर सुभान अल्लाह कभी रुका ही नहीं। जब तुम जन्नत में कदम रखते हो तो पहला मंजर ऐसा होता है जिसे दुनिया की किसी आंख ने कभी देखा नहीं। ज़मीन ज़ाफ़रान और मुश्क की खुशबू से महकी है, हवा में मीठी सी राहत है और हर सिमत सुनहरी और सब्ज रोशनी की लहरें। फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, वो कहते हैं सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया था, आज तुम्हारा दिन है, अब हमेशा के लिए यहाँ रहो। तुम्हारे सामने एक अजीम महल उभरता है, सोना, चांदी, याकूत, सबका नूर एक जगह जमा। तुम अंदर आते हो और दीवारों पर नक्शो निगार मध्यम आवाज में अल्लाह का जिक्र करते हैं। जमीन मोतियों की तरह चमकती है, हर कदम के साथ हल्की रोशनी उगती है। तुम बैठते हो और फरिश्ते पानी और मशरूब लाते हैं। वो कहते हैं ये पानी हौज़े कौसर की नदी से है। तुम पहला घूंट पीते हो और दिल से हर थकन, हर गम, हर बोझ पिघल जाता है। आगे नहरें बह रही हैं, पाक पानी, दूध जो कभी बदला नहीं जाता, शहद जो हमेशा मीठा रहता है और वो शराब जो सरूर देती है मगर नशा नहीं। ये नहरें तस्बीह पढ़ती महसूस होती हैं, कतरे नूर की तरह चमकते हैं और दरख्तों के पत्ते अल्लाह की हम्द पढ़ते हैं। एक फरिश्ता कहता है ये तुम्हारा घर है, यहाँ न बीमारी, न बुढ़ापा, न उदासी। तुम्हारी रूह मुस्कुरा उठती है, तुम जान लेते हो कि यही तुम्हारी असल वापसी है। डोरे तुम्हारा घर चमक रहा है और उसके अंदर तुम्हारे प्यारों के चेहरे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बच्चे, सब मुस्कुराते हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं आखिर तुम आ ही गए और तुम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे वापस घर ला दिया। फरिश्ते मुस्कुराते हैं और कहते हैं आज से ना कोई गम है, ना कोई तकलीफ, ना आंसू, ना दर्द, यहाँ सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ खुशी। तुम जन्नत के बागों में चलने लगते हो, हर तरफ रंगों से भरे फूल, मोतियों जैसी चमकती हुई नरम खाक और वो दरख्त जिनके साए में ठंडक भी है और खुशबू भी। इन दरख्तों के फल सिर्फ सोचने से तुम्हारे हाथों में आ जाते हैं। हर फल का जायका नया, हर लुक़मा अल्लाह की रहमत की याद, हर घूंट में शुक्र, हर लुक़मे में सुकून। फरिश्ते तुम्हारे पास खाने और मशरूब लाते हैं, किसी प्लेट में जन्नती परिंदों का लजीज गोश्त, किसी प्याले में शहद और दूध का साफ और शफाफ मशरूब। न भूख बाकी रहती है, न प्यास, सिर्फ लुत्फ, सिर्फ शुक्र। फिर तुम्हारी निगाह आसमान की तरफ उठती है, हर सिमत नूर ही नूर, कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, बस अल्लाह का नूर जो पूरी जन्नत को जगमगाता है। फिर तुम अपने हमसुफिर को देखते हो, वो शख्स जो दुनिया में तुम्हारे साथ था। अगर दोनों नेक हों तो अल्लाह दोनों को एक ही मकाम पर जमा कर देता है। अब ना कोई गलत फहमी, ना कोई झगड़ा, ना कोई दूरी, सिर्फ मोहब्बत कोई ही है और गहरी होती जा रही है। वो मुस्कुरा कर कहता है तुम आज पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, और तुम जवाब देते हो और तुम भी, और दोनों समझ जाते हैं कि अब ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। हर रोज नई खुशबू, नई रोशनी, नया एहसास, न थकन न अदासी, सिर्फ बरकत और खुशी। फिर तुम्हें महसूस होता है कि यहाँ वक्त चलता नहीं, यहाँ वक्त ठहर जाता है
और हर लम्हा सुकून में ढल जाता है। जब जन्नत के रहने वाले अपनी अबदी जिंदगी में पूरी तरह ढल जाते हैं, हर रोशनी, हर खुशी, हर रहमत और हर सुकून के साथ, तब एक दिन वो लम्हा आता है जिसका इंतजार हर दिल, हर रूह और हर आंख ने किया होता है, अपने रब के दीदार का लम्हा। आज जन्नत के तमाम रहने वालों को बुलाया गया है, एक वसी वादी जो सफ़ेद मुश्क की खुशबू से भरी हुई है, जिसकी फ़ज़ाओं में नूर ऐसे लहरा रहा है जैसे आसमान खुद ज़मीन पर उतर आया हो। हर शख्स अपने बेहतरीन लिबास में सजा हुआ है, चेहरे नूर से भरे, दिल खुशी से रोशन। फरिश्ते नरमी से ऐलान करते हैं, आज तुम्हारा रब तुमसे मुलाकात करेगा। दिल एक साथ धड़क उठते हैं, चेहरे मुस्कुराते हैं, मगर दिलों में एक ही दुआ है, या अल्लाह आज हमें अपना दीदार अता फरमा। फिर आसमान से एक नूरानी आवाज़ गूंजती है, ऐ जन्नत वालों, तुम पर सलाम हो। इसी लम्हे एक ऐसी रोशनी पूरी वादी में फैल जाती है जो दुनिया में कभी किसी ने न देखी थी। ये रोशनी न सूरज की है न चांद की, ये तुम्हारे रब का नूर है। और जब अल्लाह ताला का जलाल व जमाल जाहिर होता है तो पूरी जन्नत कांप उठती है। सब मोमिन बेइख्तियार सजदे में गिर जाते हैं और हर जबान से एक ही कलमा निकलता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत भरी आवाज़ में फरमाते हैं, सर उठाओ, ये सजदा दुनिया के लिए था, आज तुम मेरे मेहमान हो, मांगो जो चाहो, ये जन्नत तुम्हारी है। और जन्नत वाले अर्ज करते हैं, या रब, हमें सिर्फ तेरी रज़ा चाहिए, तेरा कुर्ब चाहिए, तेरा नूर चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुमसे राज़ी हो गया, आज के बाद कभी तुम पर नाराज ना होऊंगा। इसी लम्हे अल्लाह का नूर हर दिल में उतर जाता है, रूह हल्की हो जाती है, दिल रोशन हो जाता है और एक ऐसा सुकून मिलता है जो न कलम बयान कर सकता है न ज़मान अदा कर सकती है। यही वो इनाम है जो जन्नत की हर नेमत से बढ़कर है, अपने रब का दीदार। जिसने ये नज़ारा पा लिया उसके लिए जन्नत की हर खुशी दुबाला हो गई। जब लोग अपने घरों को वापस लौटते हैं तो उनके चेहरे ऐसे जगमगा रहे होते हैं कि खिदमत करने वाले फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, आपके चेहरे तो पहले से कहीं ज्यादा नूरानी हो गए। जन्नत वाले मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हमने आज अपने रब को देखा है। फिर पूरी जन्नत में नूर की एक लहर दौड़ जाती है, हर दरख्त, हर नदी, हर महल इस नूर से चमक उठता है और सब मिलकर एक ही तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा, हम पर तेरा एहसान बेइंतहा है। इस लम्हे के बाद न कोई वक्त रहता है न कोई इंतजार, सिर्फ रहमत, सिर्फ खुशी और सिर्फ अल्लाह का कुर्ब। और इंसान, वो जो कभी दुनिया में टूटा भी, रोया भी, तन्हा भी हुआ, आज कहता है, मेरे रब ने मुझे कभी छोड़ा नहीं था, मैं ही सिर्फ इंतजार में था। आज मेरी रूह को वो सुकून मिला है जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसता रहा। इसी लम्हे तुम्हारे दिल में एक ख्याल जन्म लेता है, अगर दुनिया वाले जान जाएं कि जन्नत का एक लम्हा क्या होता है तो वो कभी भी गुनाह के करीब ना जाए। तुम आसमान की तरफ देखकर कहते हो, या रब, तू सबसे बड़ी रहमत है, तूने अपने सारे वादे सच्चे कर दिए, तूने मुझे अपने करम से नवाजा। मेरे आमाल इस काबिल कब थे? फिर तुम्हारे होंठों से एक दुआ निकलती है जो पूरी जन्नत की फजा में लरज उठती है, या रब, दुनिया में रह जाने वाले तमाम लोगों को माफ फरमा, उन्हें भी इस रोशनी तक ले आ, उन्हें भी इस अबदी सुकून तक पहुंचा दे। आसमान से एक नरम सी रोशनी उतरती है, तुम्हारे दिल पर गिरती है और तुम महसूस करते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन रहा है। फिर एक फरिश्ता करीब आकर कहता है, याद रखो, ये जन्नत सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये उन सब के लिए है जो तौबा करके अपने रब की तरफ लौट आते हैं। और यूं जन्नत का आखिरी पैगाम तुम्हारे दिल में उतर जाता है, रहमत, मोहब्बत और अल्लाह के कुर्ब का वादा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जन्नत कोई कहानी नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है उसकी मंजिल भी यही है, यही रोशनी, यही सुकून, यही अबदी घर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पैगाम को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बनें।